Hi guys, how are you? Hi Niharika, hi Tiny, hi Aarti, hi Muni, hi Vandana. How are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? Hello guys, a very good morning to all of you. I hope आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे. Hi Aarti, hi Niharika, hi Tiny. अभी हमें बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है. We'll wait for some more people to join and then we will start. So yeah, we have to wait for some time. Till then, how are you guys? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी क्लासेस? कैसे चल रही है आपकी प्रैक्टिस? Hi Muni, how are you? I'm good. आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया. Thank you so much for asking. हाँ जी. So हाँ, कल की क्लास was very nice. I tried it. And मुझे पहले से comparatively पहले से तो I'm aware about brushes things. So I'm quite happy about that. And उसी brushes से मुझे याद आया तुषार, I have asked you कि customization available है या नहीं. So you said you'll check with the team. So I is think there any option? at this moment अभी customization I think possible नहीं है. Because हमारे पास भी जो है फिलहाल sets ही हैं. We have made these sets, but Okay. maybe in upcoming times we will be providing you customized brushes. But right now I think we don't have it. Okay. ठीक है. ठीक है जी. हाँ जी. तो तुषार मुझे एक चीज बता दीजिए, जैसे लाइक सपोज अगर मैंने पर्सनल सेट लिया, जैसे देयर आर 14 ब्रशेस, राइट? हाँ जी. 14 ब्रशेस. तो अगर मैंने चेक किया, पहली चीज तो मुझे वहाँ 13 ब्रशेस ही दिखाई दिया, जो लिंक मुझे अवेलेबल मतलब मेरे कोऑर्डिनेटर से मिला था मुझे. ठीक है. एंड दूसरी चीज, जैसे उसमें एक दो ब्रशेस हैं जो आई वांटेड टू ऐड इन, ठीक है? सो अच्छा. सपोज इफ आई टेक अ पर्सनल किट, मैंने ले लिया, बट मुझे एक दो और एक्स्ट्रा ब्रशेस चाहिए जो आपके प्रोफेशनल में है, तो वो मुझे कैसे मिलेगा? कोई ऑप्शन है? एक मिनट मेरे को दीजिए, मैं एक मिनट में आपको बताता हूँ. हाँ जी. हैंड रेज कर रही हो. अपने पास पे रीड कर डालो, सब कुछ तो करती नहीं है. ओके. सो मोनी, राइट नाउ अभी ये भी पॉसिबल नहीं है. अभी कस्टमाइजेशन हम अवेलेबल नहीं कर रहे हैं, बट मे बी इन अपकमिंग टाइम्स अगर ऐसे और क्वायरीज आती हैं या रिक्वायरमेंट आती है, वी विल अलाउ कि आप लोग कस्टमाइज ब्रश ले सकें. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी इट्स नॉट पॉसिबल. आई एम सॉरी. नो प्रॉब्लम. ठीक है तुषार, इफ देयर इज एनी प्लीज लेट मी नो. श्योर. अगर ऐसे जैसे ही होगा वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट. ठीक है जी. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. बाय द वे, अगर आपने ब्रशेस नहीं लिए हैं तो यू कैन टेक पार्ट इन आवर गिव अवे
एंड मे बी उस गिव अवे में आपको, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो मिल सकती है। I would definitely love to be the part of that. करना क्या है वैसे? अभी क्या तो है? कुछ नहीं करना है, अभी तो आपको बस इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहना, हमारी स्टोरीज चेक करते रहना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको उसके बारे में सब पता चल जाएगा, मुझे भी नहीं पता है। सो मैं भी इंस्टाग्राम ही चेक करता हूँ, आप इंस्टाग्राम चेक करिए। बट यस, दिस इज अ ग्रेट गिव अवे, इट्स फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। You will be able to have some nice stuffs for free of cost. Surely, surely. I'll do that. I have followed the page and I keep checking it. Definitely. ठीक है. That's perfect. Okay. Thank you. Most welcome. Okay. Sure. So guys, we're waiting for some more people to join, I know, but yes, we have to wait for them. So we will wait for like 2-3 minutes more and then we will start. Okay, guys, I think we should start. जो बच गए हैं, they will join later on. So right now we will be doing contouring and highlighting. If you follow social media trend, then you must be familiar with the art of face contouring, which has taken the world of makeup to storm. Everyone from Kylie Jenner to your next door neighbor seems to be putting up snaps on social media with sculpted cheekbones and defined jawline. If you
are wondering how do they do it and why you end up with a dirty face every day, you experiment with face contour, then this is a perfect course material for you. This session will help you learn this technique step by step. And for today's session, we are going to have with us Melissa Young. About her, she did makeup for FTCI Will Lifestyle Indian Fashion Week. She did makeup for BNWSSC Skill Demo Makeup and hairstyling at National Entrepreneurship Award 2017. She did makeup for Mrs. India 2018. She worked for Sumu as a makeup artist and an amazing makeup educator that we are having right now. Working with so many places, working for a long time, she has gained a lot of experience. She has learned a lot in her journey, and I think मेलिसा की क्लास लेने का तरीका भी इसी वजह से काफी सटल सा है, काफी आराम से वो आपकी सारी चीजें सुनती हैं और वो आपको बताती हैं. यू गाइस हैव टेकिंग क्लासेस विद हर एंड आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं शी ऑलवेज ट्राई टू आंसर देम जब भी हो. So yes, this is going to be an amazing session and contouring and highlighting. I think थोड़े से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत टेक्निकलिटी जिसमें इन्वॉल्व है, बट यस वंस यू मास्टर दीज थिंग्स ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाती हैं. एंड व्हेन यू कॉन्टूर और हाईलाइट परफेक्टली देन डेफिनेटली योर मेकअप लुक्स I would say more than better than आप contouring और highlighting के बिना करते हैं. So yes, this is going to be an amazing session, and I think it's time that we should invite Melissa. So hi Melissa, can you hear me? Hi Tushar, how are you? I'm good, Melissa. How are you? I'm very well. Thank you for asking, and thank you so much for this lovely introduction, Tushar. Can you hear me? Yes. Okay. So hi Aarti, hi Moni, hi Niharika, hi Sushrita, hi Tiny, hi Vandana. Hello everyone. How are you all? Hello Moni. Hi everyone. सब कैसे हो guys? Are you guys excited for this class? Sounds great. So guys, सब respond करिए ताकि मुझे पता चले कि how excited you guys are about this class, because it will be a really interesting topic. And I would start with introducing myself. My name is Melissa Young and I'm a professional makeup artist. Or let me start the session now. I hope everyone is ready. Moni, Tiny, बाकी सब भी reply कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन ready है, so that we can start with the theory part. Okay, so only 2 of them are replying. No problem, guys. आप acknowledge करोगे तो ज़्यादा better understanding मुझे भी मिलेगी कि आप you are attending the class. Exactly. So please respond. जो भी है whatever you feel, just respond so that we know आप लोग भी attentive हैं and आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, which is the most important thing in each and every class. So keep responding whatever Melissa asks you. Please, it would be really great कि हम इस session को थोड़ा सा और interactive बनाएं. Okay, so I think Tushar, I should start with Definitely, we can start the session. Okay, so हमारा आज का topic है about contouring and highlighting. So अगर आप थोड़ा भी मेकअप थोड़ा बेसिक अपने ऊपर करते हो या फिर आपने कभी कोई क्लाइंट अटेंड करी है या नहीं भी करी है, so contouring and highlighting हमारे मेकअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हमने पूरा मेकअप कर लिया है, like complete eye makeup, base, lipstick and everything, बट अगर हमने कॉन्टूरिंग एंड हाईलाइटिंग नहीं करा है तो हमारा फेस बहुत ही ज्यादा ब्लैंक लगता है, बहुत ही ज्यादा फ्लैट लगता है. सो कॉन्टूरिंग हमारा सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज वो हमारे फेस को स्कल्प्ट करता है, एक डायमेंशन क्रिएट करता है. जिन एरियाज में डेप्थ की जरूरत है वहाँ डेप्थ देता है. तो हमारा फेस, अगर हम चीक्स में कॉन्टूर कर रहे हैं तो वो एरिया से डेप्थ देता है, हमारा फेस बहुत ही स्लिम लगता है. ठीक है, अगर रही बात और एरियाज की लाइक नोज, फोरहेड, आगे हम और भी बात करेंगे, बट दिस हेल्प्स टू गिव डायमेंशन टू योर स्किन, टू योर फीचर्स. ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट हाईलाइटिंग,
तो हाईलाइटिंग से ही पता चल रहा है कि इट इज अबाउट फोकसिंग ऑन सर्टेन फीचर्स, जैसे कि अगर हम नोज हाईलाइटिंग करते हैं, चीक्स हाईलाइटिंग करते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी ट्रेंडिंग दीज डेज। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, जो कि मोस्टली करते ही होंगे लोग, या फिर आप फेसबुक या फिर कोई मेकअप ट्यूटोरियल्स भी देखते हो, तो हाईलाइटिंग प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। और अगर आप इंस्टाग्राम में इफ यू सी सम, इफ यू फॉलो सम इन्फ्लुएंसर्स, तो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। अगर आप रील्स देखोगे, हर जगह आप हाईलाइटिंग को फोकस देखोगे। सो दिस वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, जो कि आपके मेकअप में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, चाहे आप अपने क्लाइंट पर करो चाहे खुद पर करो। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन टू यू, जिसमें आपको और थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी अबाउट कि हम प्लेसमेंट कहाँ करते हैं कॉन्टोरिंग की और हाईलाइटिंग की, और कौन से फेस शेप में हम कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट करेंगे। सो आर वी गाइस रेडी? ओके, वंदना इज रेडी. Hello, Vandana. Okay, guys, so I'm sharing my presentation to you. Okay, just a moment. सबको स्क्रीन विजिबल है? सब प्रेजेंटेशन देख सकते हैं? Yes, 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 it is visible. Okay, perfect. सो अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखोगे, उसमें है कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग की प्लेसमेंट की एक पिक्चर है ऑन द राइट साइड. ठीक है, इसमें ये दिखाया गया है कि कौन से एरियाज में हम कॉन्टोर करते हैं और कौन से एरियाज में हम हाईलाइटिंग की प्लेसमेंट करते हैं. तो अगर आप फोरहेड एरिया देखोगे तो वहां पे कॉन्टोर 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 लिखा है, और कुछ एरियाज में हाईलाइट लिखा है, विच मीन्स कि वहां पे सिर्फ हाईलाइटिंग होगा. हम कभी भी इसको वाइसा वर्सा नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कर सकते कि हम हाईलाइटिंग की जगह कॉन्टोरिंग कर दे या कॉन्टोरिंग की जगह हाईलाइटिंग कर दे. तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है. इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट अगर आप किसी के ऊपर भी मेकअप कर रहे हो या फिर अपने ऊपर भी मेकअप कर रहे हो, तो आपको बिगिनिंग में थोड़ा अंदाजा हो जाए कि अच्छा, मुझे ये एरिया को कॉन्टोर करना है और ये एरिया को हाईलाइट करना है. ठीक है. ऑल्सो आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग. अगर ये मैं पिक्चर रेफरेंस दे रही हूँ, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर फेशियल शेप में इन्हीं जगहों पर कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग होगा. उसकी अलग अलग फेशियल शेप के अकॉर्डिंग हमें उनको फीचर्स को इनहैंस करना है, ब्यूटी को इनहैंस करना है, या फिर कुछ एरियाज को फोकस्ड करना है. उसके बारे में मैं आगे स्लाइड्स में आपको क्लैरिटी दूंगी. साथ में द बेस्ट पार्ट इज कि हम इसमें एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन क्लास भी कराऊंगी मैं आपको, जिसमें आपको और भी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और हम साथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है गाइज. सो अगर आप लेफ्ट साइड की पिक्चर देखोगे तो उसमें आपको जो मॉडल है, उन्होंने अपने फेशियल शेप के अकॉर्डिंग अपनी प्लेसमेंट करी है कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग. ठीक है, तो उन्होंने फोरहेड में करा है, नोज में करा है, चीक्स में करा है, और अपने क्यूपिड बो के आसपास थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करा है और हाईलाइटिंग की प्लेसमेंट करी है. और जब आप उसका इफेक्ट देखोगे राइट पिक्चर में, तो इट लुक्स सो नेचुरल. ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कुछ इतना डार्क शेड लगाया था बिफोर ब्लेंडिंग द मेकअप, और इतना लाइट शेड अपने फेस पे लगाया है. तो उसकी हमें क्लैरिटी मिलेगी, बहुत ही ज्यादा डायमेंशन मिलता है स्किन को, एरियाज में डेप्थ मिलता है, हमारे गुड फीचर्स और ज्यादा इनहैंस हो जाते हैं. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग गाइस. नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज कॉन्टोरिंग एंड व्हाट इज हाईलाइटिंग, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ऑलरेडी बता दिया है कि व्हाट इज कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग. सो कॉन्टोरिंग एक टेक्निक होती है जिससे हम अपने स्किन, अपने फेस को स्कल्प्ट कर सकते हैं या फिर उसमें और डायमेंशन ऐड कर सकते हैं. ठीक है, और हम जब भी कॉन्टोरिंग शेड, मतलब कभी भी कॉन्टोरिंग किसी भी फेस टोन पर कर रहे हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर अबाउट वन थिंग कि हमें अपने टोन से 2 या 3 शेड या मैक्सिमम 4 शेड डार्कर शेड हम यूज कर सकते हैं. Now talking about highlighting is basically focusing on certain area. जैसे कि हमारा कोई एरिया है जो इतना फोकस नहीं है, जैसे कि मेरा चिन छोटा है, तो मुझे उसको और दिखाना है, थोड़ा और फोकस्ड कराना है, उसको और इनहैंस कराना है. सो आई विल डू हाईलाइटिंग ऑन दोज एरिया ताकि वो एरिया थोड़ा इनहैंस हो पाए. ठीक है, सो कॉन्टोरिंग इज टू गिव डेप्थ, हाईलाइटिंग इज टू गिव फोकस टू दोज एरिया. ठीक है. सो अगर आप इसमें पढ़ सकते हो तो उसमें ये भी लिखा है कि चीक बोन, ब्रिज ऑफ योर नोज, चिन, क्यूपिड बो,
सेंटर ऑफ योर फोरहेड, ये सारे एरियाज है जहाँ पे हम हाईलाइटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, सो दैट फॉर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और आप हर स्लाइड की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो भी आपको लग रहा है कि आपके लिए वो बेनिफिशियल है। Shall I move forward, guys? Tushar, shall I move to the next slide? Okay. Thank you, Moni, for responding. Guys, सब respond करिए, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि किस किस को सबने स्क्रीनशॉट ले ली है कि नहीं ली है। So let's not make this class boring, guys. ठीक है, थोड़ा सा हम इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, है ना, तभी तो पता चलेगा हमें कितनी नॉलेज मिल रही है। या फिर मैं कुछ बता रही हूँ आपको समझ नहीं आ रहा, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं खुल के बिना शर्माए, तो मुझे पता कैसे चलेगा आपको आ रहा है कि नहीं, राइट? सो अच्छे से मुझे बताओ, कोई मतलब शर्म की बात नहीं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइज, बट पूछो। All right, so next is power of contouring and highlighting. मतलब क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्टूरिंग एंड हाईलाइटिंग की मेकअप, ठीक है, उसका क्या बेनिफिट है। तो कॉन्टूरिंग एंड हाईलाइटिंग जो हमारा 2D फेस होता है उसको एक 3D इफेक्ट देता है आफ्टर वी डू कॉन्टूरिंग एंड हाईलाइटिंग, ठीक है। वो हमारे गुड फीचर्स को और ज्यादा इनहैंस करता है, साथ में हमारे फेस को स्लिम भी करता है। कॉन्टूरिंग से हमारा, अगर कोई नोज कॉन्टूरिंग कर रहा है या चीक कॉन्टूरिंग कर रहा है और उनका फेस बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है या फिर बहुत चबी फेस है, तो उसको हम थोड़ा स्लिम कर सकते हैं। हमारे फेशियल स्ट्रक्चर को वो बैलेंस भी करता है, जैसे कि अगर हमारी नोज सीधी नहीं है या फिर मोटी है या फिर फेस फोरहेड बहुत ही ज्यादा चौड़ा है या बहुत छोटा है, तो उस पे भी वो स्ट्रक्चर को बैलेंस करने में हेल्प। तुषार, आई थिंक आप सबको म्यूट कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो मैं कौन से, अच्छा, इसके बाद मैं बता रही थी कि हमारे वो फीचर्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। जब आप कॉन्टूरिंग कर लेते हो, आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल जहाँ जहाँ पे आपको डेप्थ की नीड है, जहाँ जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फेस है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। और हमारे हाईलाइटिंग क्या करता है, हमारे कुछ एरिया को लिफ्ट भी करता है, जो उभारता है। सो अगर आपका स्ट्रक्चर्ड फेस है, बहुत ही ज्यादा जहाँ जहाँ पे परफेक्ट सिमेट्री फेस है, अगर इजी वर्ड में बोलूं, तो हमारा फेस बहुत ही ज्यादा यूथफुल भी लगता है, बहुत यंगर भी लगता है और बहुत ही ज्यादा स्टनिंग भी लगता है आफ्टर वी डू आवर कंप्लीट मेकअप। Now if you guys want, you can take a screenshot. It is not very important, but we can go to the next slide now. Okay, now this is very important. You guys can take a screenshot. Also contouring and highlighting for features, ठीक है। हमें कौन से एरियाज में जब हम कॉन्टूरिंग करते हैं और कौन से एरियाज में हाईलाइटिंग करते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इफ यू सी दिस पिक्चर, जिसमें लेफ्ट साइड की जो मॉडल है उस पे कॉन्टूरिंग हो रखी है, राइट साइड वाली पे हाईलाइटिंग हो रखी है अकॉर्डिंग टू हर फेशियल शेप। तो अगर हम कॉन्टूरिंग की बात करें, तो अगर हम किसी के ब्रॉड फोरहेड को इस एरिया को कंटूर कर रहे हैं, तो वो हमारे फोरहेड को डाउन साइज करता है, थोड़ा कम दिखाता है अगर वो ब्रॉड है। अगर हम एक वाइड नोज को कॉन्टूर कर रहे हैं, नोज की जो हमारी ब्रिज होती है उसको एजेस में हम अगर कॉन्टूर कर रहे हैं, तो वो हमारे नोज को थोड़ा थिनर दिखाएगा, एक अपीयरेंस क्रिएट करेगा कि वो थिन है। इफ आई टॉक अबाउट अ चीक बोन, अगेन अगर किसी की फेस बहुत ज्यादा चबी है, इफ आई टॉक अबाउट माय फेस, ठीक है, आई हैव अ राउंड फेस और मेरा ये एरिया थोड़ा चबी है, पर अभी मैंने कॉन्टूर नहीं करा, बट अगर मैं कॉन्टूर कर दूं तो इट विल गिव अ डेप्थ और ये एरिया थोड़ा थिनर लगेगा, थोड़ा स्लिमर लगेगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द जॉ लाइन, जैसे किसी की डबल चिन होती है, मेरी भी स्लाइटली डबल चिन है, तो उसको भी एक अपीयरेंस क्रिएट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो नहीं है, इफ यू डू कॉन्टूर। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड पिक्चर व्हिच इज ऑल अबाउट हाईलाइटिंग, तो उसमें
अगर हम सेंटर ऑफ द फोरहेड में हाईलाइट कर रहे हैं तो वो एक अटेंशन ड्रॉ करता है हमारे फोरहेड पर और फोकस्ड करता है। अगर आपका फोरहेड बहुत ही ब्रॉड है देन यू डू नॉट हैव टू डू दिस स्टेप, बट अगर आपका फोरहेड बहुत ही ज्यादा नैरो है, जिसको कहते हैं छोटा फोरहेड है, तो यू वांट टू ड्रॉ सम अटेंशन टू दैट एरिया, तो आप वहां पे हाईलाइटिंग कर सकते हो। अगेन हमारी नोज की ब्रिज है जिसको हम ये एरिया कहते हैं, वहां पे भी हाईलाइट करोगे तो वो एरिया भी फोकस करता है। सेम जो हमारी चीक बोन्स होती हैं, क्यूपिड बो होता है, चिन होता है, उन एरियाज पे हम हाईलाइट करते हैं तो वो एरिया और ज्यादा उभर के आता है, बहुत ही ज्यादा इनहैंस लगता है, बहुत ही फोकस लगता है। बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एक बहुत बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए इफ यू आर लर्निंग मेकअप, इवन फॉर योरसेल्फ और फॉर एनीवन, ठीक है, या फिर अपने क्लाइंट पे भी कर रहे हो, क्योंकि हर फेशियल शेप अलग होगी, ठीक है, उस पे अलग अलग तरीके से कॉन्टोरिंग होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम प्लेसमेंट करेंगे कॉन्टोरिंग की, किस एरिया को आपको देख के एनालाइज करना है, फेस को देख के। हर इतने सारे टाइप के फेस होते हैं हमारे मतलब इस दुनिया में, तो अब हम सबका तो हम कवर नहीं कर सकते, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग जब मिल जाएगी, जब आप इमेजिन करने लगोगे अच्छा कि इस फेस पर हमें इस एरिया में कॉन्टोर करना है, हमें उस एरिया में डेप्थ देना है, या इस फीचर को हाईलाइट करना है, तो उसकी काफी ज्यादा नॉलेज आपको इस क्लास से मिल जाएगी, ठीक है। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग फॉर फेस। ठीक है, हमारे 5 टाइप के मैंने फेस शेप या मेंशन करा है, विच इज ओवल, स्क्वायर, हार्ट, राउंड एंड रेक्टेंगल, ठीक है। अब इन टाइप के फेसेस ये बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं, और इन टाइप के फेशियल शेप में आप कौन सी जगह पे प्लेसमेंट करोगे अपने कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग की, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। इफ यू गाइज वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी का ओवल फेस है, ठीक है, ओवल फेस को हम ये भी कहते हैं कि इट इज एन आइडियल शेप, ठीक है, इट इज लाइक अ ऑलमोस्ट परफेक्ट शेप जिसपे हम वर्क कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट ओवल फेस पे वर्क करना, यू कैन जस्ट जैसे कि आप पिक्चर में देख भी सकते हो, मेरे एरो को फॉलो करते रहिए। यहाँ पे हाईलाइटिंग हो रखा है सेंटर ऑफ फोरहेड में, ठीक है, नोज पे कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग हो रखी है जैसे कि मैंने बताया था। अंडर आईज में और चीक एरिया में थोड़ा सा चीक बोन में हाईलाइट हो रखा है, ताकि वो एरिया थोड़ा उभर के आए, इनहैंस लगे, फोकस लगे। अगेन कॉन्टोरिंग करी हुई है ताकि थोड़ा सा फेस में एक डेप्थ आ जाए, एंड चिन में थोड़ा सा हाईलाइट करा है सो दैट वो भी थोड़ा फोकस लगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट स्क्वायर फेस, अगर पता नहीं इजीली आपने कभी ऑब्जर्व करा है कि नहीं कि स्क्वायर फेस होता क्या है, तो स्क्वायर फेस का ये जो एरिया होता है ना, बहुत ज्यादा एजी होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है ये एरिया, ठीक है। तो उस एरिया को अगर हमें थोड़ा सा कम दिखाना है तो हम उस एरिया में कॉन्टोर करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ चीक बोन टिल दिस एजी एरिया, ठीक है। उस एजी एरिया को हमें कम दिखाना है। थोड़ा सा हम फोरहेड, ये हमारे जो टेम्पल्स होते हैं, ये दोनों एरिया, यहाँ पे भी हम कॉन्टोर करेंगे ताकि वो एरिया भी थोड़ा कम लगे, क्योंकि स्क्वायर आपको पता है कि कैसा होता है, इट्स लाइक दिस, राइट। तो यहाँ से भी एजी होगा, यहाँ से भी एजी होगा, तो हमें उसको कम दिखाने के लिए उन एरियाज में कॉन्टोर करना है। हाईलाइटिंग के लिए हम बहुत ही थोड़ा सा सेंटर ऑफ फोरहेड में कर सकते हैं, नोज ब्रिज में, एंड अगेन चीक बोन्स, और थोड़ा सा अगर आपको चिन में करना है तो वो भी कर सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हार्ट शेप, ठीक है, हार्ट शेप में जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर इसका नाम हार्ट शेप फेशियल शेप है तो मींस ये एरिया थोड़ा सा इस तरीके से होगा और नीचे आते आते थोड़ा पॉइंटी होगा। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें ये एरिया थोड़ा ब्रॉड होगा तो इस एरिया में हम करेंगे कॉन्टूर, जैसे कि पिक्चर में भी दिखा रखा है, और हम थोड़ा सा ये जो पॉइंटी एरिया होगा उसमें हम थोड़ा सा कॉन्टूर कर सकते हैं, जरा सा हाईलाइट हम फोरहेड पे कर सकते हैं, देन अगेन our cheekbone and nose of course, ठीक है। Now talking about round face which is my face, तो आप बहुत easily relate कर पाओगे डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त भी और अभी भी अगर मैं समझाऊं तो, जैसे कि जो राउंड फेशियल शेप होता है उनका ना सब चीज का साइज इक्वल मात्रा में होता है, इसी वजह से वो राउंड फेस कहलाता है, ठीक है।
तो हमें क्या करना होता है, जैसे ये एरिया थोड़ा ब्रॉड होता है तो हमें यहाँ से लेकर इस पूरे एरिया में कॉन्टूर करना होता है ताकि वो थोड़ा कम दिखे, थोड़ा स्लिम दिखे। एंड अगेन नोज में हम कर सकते हैं, बट हम राउंड फेस में हमारा ये एरिया थोड़ा छोटा होता है, हमारा जो चिन एरिया होता है थोड़ा छोटा होता है, तो हम उस जगह पे कॉन्टोरिंग ना करके हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे ताकि वो थोड़ा उभर के दिखे। ठीक है, नाउ सेम रेक्टेंगल फेस, वो जो हमारा रेक्टेंगल फेस होता है वो थोड़ा लंबा फेस होता है, जैसे कि आपने एक रेक्टेंगल देखा भी होगा कैसा होता है। तो उसमें हमारे फोरहेड भी थोड़े ब्रॉड होते हैं और हमारा ये एरिया भी थोड़ा ब्रॉड होता है और चिन थोड़ी पॉइंटी होती है। ठीक है, स्लाइड में भी अगेन इट इज वेरी सिंपल, मैं आपको इतने बार बता चुकी हूँ तो आपके दिमाग में ये बात बस जाए, इसमें मैं रिपीट करे जा रही हूँ कि हर फेस में एक ही चीज होगा, बस आपको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग समझनी है कि अगर कोई एरिया ब्रॉड है तो वहां पे हम करेंगे कॉन्टूर। ठीक है, अगर कोई एरिया को हमें और इनहेंस दिखाना है और फोकस दिखाना है तो वहां हम करेंगे हाईलाइट। अगेन फॉर दिस फेस शेप थोड़ा ये पॉइंटी है तो यहाँ हम कॉन्टूर करेंगे। अगेन चीक एरिया में भी थोड़ा कॉन्टूर करेंगे एंड फोरहेड में थोड़ा कॉन्टूर करेंगे ताकि वो एरिया कम दिखे। और हाईलाइटिंग पॉइंट्स आप देख सकते हो, स्लाइटली चीक बोन्स में है, नोज ब्रिज में है और स्लाइटली हमने सेंटर ऑफ द फोरहेड पे लगाना है। सो दिस इज वेरी इजी। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। लेट मी जस्ट चेक द चैट बॉक्स। Yes, Moni, we do have a celebrity with square face shape. If I talk about Bollywood, we have Kareena Kapoor. She has square face shape. ठीक है, एंड डायमंड फेस शेप में कैसे करेंगे? ओके परमिंदर, तो अगर किसी का डायमंड शेप है तो हमें पता ही चल रहा है कि इट विल बी लाइक लाइक वेरी एजी फेस। ठीक है, तो हम इस एरिया में कॉन्टोर तो करेंगे। ठीक है, ये एरिया भी थोड़ा एजी होगा तो यहाँ पे भी हमें अच्छे से डीप कॉन्टोरिंग करनी है ताकि वो थोड़ा कम दिखे। ठीक है, और हम इस एरिया में जरा सा हाईलाइटिंग करेंगे। नोज पे तो हाईलाइटिंग होगी, पर जिसका थोड़ा स्क्वायर फेस शेप होता है, सॉरी जिसका थोड़ा डायमंड फेस शेप होता है, उनके ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उनकी नोज ऑलरेडी बहुत ज्यादा एजी होती है मोस्टली केसेस में। तो उसमें हम क्या करेंगे, ज्यादा कॉन्टोर करेंगे तो वो और ज्यादा पतली दिखेगी, लाइक पॉइंटी दिखेगी। तो हमें वो नहीं करना, हम ज्यादा हाईलाइटिंग कर सकते हैं उस केस में। और सेम हम स्क्वायर डायमंड फेशियल शेप में थोड़ा सा हम हाईलाइटिंग पे फोकस करेंगे और जहां जहां हमें दिख रहा है बहुत ज्यादा एजी है वहां पे कॉन्टूर करेंगे। तो मतलब बहुत ही इजी है, अगर कोई एरिया आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत एजी दिख रहा है, तो वहां पे हम कॉन्टूर कर देंगे। ठीक है, अगर हमें दिख रहा है कि कोई एरिया बहुत छोटा है और हमें उसे और दिखाना है तो वहां पे हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, जब आप कस्टमर्स अटेंड करोगे या फिर आप अपने फ्रेंड्स या किसी मॉडल के ऊपर मेकअप कर रहे हो या अपने ऊपर भी कर रहे हो, जब आप करते रहोगे ना तो आपको खुद ही एक डिफरेंस नजर आएगा कि कॉन्टूर एक साइड करो फिर दूसरी साइड मत करो। ठीक है, देन यू विल गेट टू नो कि कितना ज्यादा डेप्थ देता है हमें कॉन्टूरिंग। और जिस एरिया को अगर आपको लग रहा है कि आपका चिन छोटा है, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, वहां पे हाईलाइट करना। फोरहेड अगर छोटी है वहां हाईलाइट करना और आपको खुद ही पता चलेगा कि कितना ज्यादा वो फोकस लगता है आफ्टर हाईलाइटिंग। ठीक है गाइस, so our next is you can take a screenshot अगर आपको इनमें से कोई प्रोडक्ट्स खरीदना है। दिस इज पाउडर कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपके लिए इनके पिक्चर्स रखे हैं ताकि आप इनसे अगर आप कोई शॉप जा रहे हो और आपको कोई डिफिकल्टी ना हो पाउडर कॉन्टोरिंग खरीदने में। पाउडर कॉन्टोरिंग इज वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन एंड इवन फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने ये पिक्चर्स लगाए हैं तो मार्केट में सिर्फ यही अवेलेबल है। ठीक है, मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें पाउडर कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग दोनों अवेलेबल है। तो आपको जो भी प्रोडक्ट फील करिए, टच करिए, अगर आपको उसका फील अच्छा लग रहा है, उसका ग्लिटर पार्टिकल्स अच्छे लग रहे हैं, उसका पिगमेंट अच्छा लग रहा है, तो आप वो खरीद सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट क्रीम कॉन्टोर एंड हाईलाइट। ठीक है, क्रीम कॉन्टूर में हर ब्रांड में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते, इसलिए मैंने ये 3 पिक्चर्स रखा है। वन इज NYX, LA Girl एंड ELF। ठीक है, एल्फ भी कहते हैं उसे।
सो ये सारे अगेन आप मार्केट में जा सकते हो, नियरेस्ट मार्केट में अगर ये 3 ब्रांड अवेलेबल नहीं है, आप कोई और ब्रांड का कॉन्टोरिंग देखो, उसके शेड्स देखो। अगर आपको प्रोफेशनल यूज के लिए चाहिए तो आप काफी सारे शेड्स ले सकते हो ऑफ डिफरेंट टोन्स। अगर आपको अपने पर्सनल के लिए चाहिए तो अपने टोन से 2 या 3 शेड डार्कर टोन ले सकते हो कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग, 1 से 2 शेड लाइटर ले सकते हो। ओके गाइस, so this is the last slide of the day. Okay, so welcome Moni. Okay guys, so now we'll start with the demonstration part. ठीक है, I hope आप सबके किट रेडी हैं। मैंने अपने फेस पर ऑलरेडी सारा मेकअप कर रखा है एक्सेप्ट कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग। ठीक है, तो मैं वही स्टेप से स्टार्ट करूंगी। आप भी अगर चाहते हो तो थोड़ा बेस वगैरह लगाकर कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास क्रीम कॉन्टोर है तो बेस के बाद आप स्टॉप हो जाइए, सेटिंग मत करिएगा अपने फेस को पाउडर से। अगर आप पाउडर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो बेस लगाने के बाद, सेटिंग पाउडर के बाद आपको पाउडर प्रोडक्ट यूज करना है। ठीक है, for normal skin Moni, both the formula will work because normal skin is a healthy skin. ठीक है, उसमें कोई ऐसी कंसर्न नहीं होती, तो दोनों ही जाएगा। परफेक्ट, सो आई विल बी स्टार्टिंग विद क्रीम कॉन्टोर फर्स्ट। एक साइड में आपको क्रीम कॉन्टोरिंग करके दिखाऊंगी और दूसरी साइड में पाउडर कॉन्टोरिंग करके दिखाऊंगी। वैसे मैं अपने स्किन पर पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ क्रीम कॉन्टोर बिकॉज आई हैव एन एक्सट्रीमली ऑयली स्किन। ठीक है, बट जिस सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कैसे उसको ब्लेंड करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसलिए आई एम डूइंग इट ऑन माय वन साइड ऑफ द फेस। सो लेट मी टाई माय हेयर फर्स्ट। Okay, so I will be starting with the first, I will be using this palette which is by Kryolan Derma. This is a, sorry, the name of the palette is Mumbai 3. I will be using contour. ये 3 contour shade है। ठीक है, अब मैं इसमें से देखती हूँ कौन सा जो मेरे स्किन पर इजीली चला जाएगा। I think I will be using B742 on my according to my skin tone. तो इसको मैं अलग से डायरेक्टली वहां से ना पिक करके प्रोडक्ट, मैं अलग से एक स्पैचुला और मिक्सिंग प्लेट में ये प्रोडक्ट मिक्स करूंगी फॉर हाइजीन पर्पस। सो मैं इस तरीके से थोड़ा प्रोडक्ट ले रही हूँ। और इसको अपने, आई एम यूजिंग दिस ब्रश, इट इज अ कंसीलर ब्रश, बट मैं मिक्सिंग के लिए ये भी यूज करती हूँ। सो इट्स अ मल्टी, मतलब आप कितना भी यूज कर सकते हो फॉर अ कपल ऑफ थिंग्स। तो दिस इज अ क्रीम प्रोडक्ट बट इट इज इन अ मैट फिनिश फॉर्मूला। तो हमें इस प्रोडक्ट को एक्टिवेट करने के लिए पहले थोड़ा वार्म अप करना पड़ता है, अदरवाइज इट वोंट ब्लेंड। ठीक है, तो अच्छे से इसको मैं पहले एक्टिवेट कर रही हूँ। अब इसके 2 तरीके हैं क्रीम कॉन्टोर लगाने का। या तो आप डायरेक्टली इस ब्रश से लाइन खींच सकते हो, ठीक है, जिस भी एरिया में आपको करना है पहले स्टार्ट, या फिर वी हैव वन वेरी ब्यूटीफुल ब्रश, दिस इज बाय कल्ट कटर अगेन। ठीक है, इस वाले ब्रश का क्या बेनिफिट है, इससे आप डायरेक्टली प्रोडक्ट ऐसे ले सकते हो और डायरेक्टली आप प्लेस कर सकते हो, तो बिल्कुल एक प्रिसाइज लाइन बन के आएगी, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है, यू कैन यूज योर कंसीलर ब्रश। ओके, सो मैं अभी ये वाला ब्रश ले रही हूँ। सबसे पहले मैं कॉन्टोर करूंगी अपना जॉ लाइन। ठीक है, जो मेरा डबल चिन है उसको मुझे कम करना है।
तो इस तरीके से आई एम डूइंग द प्लेसमेंट। सो क्या होगा इससे कि जो हमारा फेशियल शेप होता है, ठीक है, असली में इस तरीके से होगा तब जाके वो एजी लुक आएगा, राइट। अगर ये एरिया नहीं होता तो दिस इज माय रियल फेशियल शेप, और मुझे यही बनाना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टूर। तो मेरा ये एरिया भी थोड़ा बाहर की तरफ है, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा कॉन्टूर कर रही हूँ। और इसको मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा ब्लेंड भी करते जा रही हूँ ताकि एक पैच ना बन जाए। और जो जो भी प्रैक्टिस कर रहा है वो अपने वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं भी देख सकूं कि आप कौन सी स्टेप करो, और कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप इन बिटवीन अनम्यूट करके पूछ भी सकते हो मुझसे। तो जब मैं इस एरिया में जा रही हूँ, जो हमारा ये थोड़ा सा बल्ज होता है, जैसे यहाँ पे हमारा कॉन्टोरिंग करने के बाद ये एरिया में थोड़ा बल्ज होता है डबल चिन का, तो मैं इस तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रही हूँ। अगेन जैसे कि हम वी बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे एक वी ही बनाना है, सिर्फ वो बल्ज एरिया में। सो वंस दिस इज डन, मैं थोड़ा सा और प्रोडक्ट ले रही हूँ क्योंकि मैं स्लोली स्लोली प्रोडक्ट को बिल्ड करती हूँ। आई डोंट लाइक टू वेस्ट प्रोडक्ट। मैं धीरे धीरे प्रोडक्ट लेती हूँ जितना मुझे लगता है कि उस एरिया में रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास ऐसा प्लेट नहीं है तो आप अपने बैक ऑफ द हैंड में भी कर सकते हो। सिर्फ एक ही जना प्रैक्टिस कर रहा है गाइस। Aarti, Tiny, Moni, are you guys practicing? Okay, guys. Okay, Moni. Do you have a beauty blender? You can even do with the help of a beauty blender if you have. So now the very important point हमारा आ रहा है चीक कॉन्टूर को थोड़ा ध्यान से देखिए, उसमें मैं थोड़े गाइडलाइंस बताऊंगी जो आपको पता होना चाहिए। सो हमारा कॉन्टूरिंग स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, एंड होगा जो हमारा ये एंड ऑफ द ब्राउज है, यहीं पे हमें रुक जाना है, और वो क्यों रुक जाना है वो मैं अभी आगे बताती हूँ, ठीक है। ओके मोनी, सो यू कैन यूज योर ब्यूटी ब्लेंडर। ओके, थोड़ा उसको हल्के हाथ से ट्राई करना ताकि वो ज्यादा फैल ना जाए। थोड़ा सा हम पाउट भी कर सकते हैं गाइस। तो देखिए मैं इधर ही स्टॉप हो रही हूँ, इससे आगे नहीं जा रही। थोड़ा सा मैं इसमें एक डार्कर शेड मिला रही हूँ क्योंकि अभी लगाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक इफेक्ट नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। अगर आपके पास क्रीम कॉन्टूर नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई फाउंडेशन है बहुत डार्क शेड का है, आपके टोन से 3 से 4 शेड लाइट है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं।
So again, ये लाइन ड्रॉ करनी है हमें। जरा सा मैं अपने फोरहेड इन टेम्पल्स पर भी लगाऊंगी प्रोडक्ट। तो अभी मैं सिर्फ प्लेसमेंट कर रही हूँ, ठीक है, ब्लेंडिंग नहीं कर रही हूँ। मुझे इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है अपने फोरहेड पर, मैं थोड़ा थोड़ा ही लगा रही हूँ। और अपने हेयर लाइन से जरा जरा ब्लेंड कर रही हूँ। अब अगेन मैं अपने ये जहाँ पे मैंने जॉ लाइन पे लगाया था वहां पे मैं हल्के हाथों से थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ। और इतनी ब्लेंडिंग भी नहीं करनी है कि वहां से प्रोडक्ट ही पूरा लाइट हो जाए, मूव हो जाए, क्योंकि हमें ये इफेक्ट दिखाना है। वी हैव टू शो दिस डेप्थ इन दिस एरिया, तभी वो दिखेगा कि वो थोड़ा स्लिम लग रहा है। नाउ मैंने ये दोनों एरियाज को हल्के हाथों से ब्लेंडिंग कर दी है। नाउ नेक्स्ट इज माय चीक एरिया। अब जो मैंने आपको कहा था कि आप अपने ब्राउज के एंड पर रख सकते हो, तो वो मैंने इसलिए कहा था कि हम ब्लेंड करते करते थोड़ा हमारा हाथ आगे ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। पर अगर आप ऑटो पहले ही यहाँ पे पहुंचा देते तो आपका फाउंडेशन यहाँ आ जाता और आपका फेस बहुत ही ज्यादा जैसे ओल्ड लोग होते हैं उनका स्किन बहुत ही ज्यादा अंदर की तरफ होता है, तो वैसा लुक आता, यूथफुल नहीं लगता। So once this is done, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, my next step will be, just a moment guys, I can't find my tissue, it's okay, I'll take the dry tissue। आप वेट टिश्यू भी यूज कर सकते हो अपने ब्रशेस को क्लीन करने के लिए। अभी मुझे आसपास दिख नहीं रहा है। ओके गाइस, सो इफ यू वांट टू रीयूज योर सेम ब्रश ऑन द सेम फेस, तो आप उसको पहले क्लीन कर लीजिए। तुषार, कैन यू अनम्यूट मोनी? एंड मोनी मैं वो रिपीट कर देती हूँ, डोंट वरी, आई विल बी रिपीटिंग दैट। सो हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, और इस एरिया में ये जो हमारा एक, हमें ये डबल चिन को कम दिखाना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। एंड देन ये जो हमारा बल्ज आता है इस एरिया में डबल चिन का, हम इस तरफ एक वी क्रिएट कर देंगे और उसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट फिल कर देंगे, तो वो एक अपीयरेंस क्रिएट कर लेगा कि मेरा ये एरिया थोड़ा शार्प है। Just a moment guys, let me just coordinate with Tushar. Just a moment, give me just 30 seconds.
ओके, सो मोनी आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। अगर आपका जो भी क्वेश्चन है, आई होप मैं सही आंसर कर रही हूँ, जो भी आपका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए। हाँ जी मनीषा, थैंक यू। एक चीज मुझे और पूछनी थी, लाइक देयर आर 2-3 क्वेश्चंस। फर्स्टली, आप जो ब्रश यूज कर रहे हो, सपोज इफ आई एम नॉट हैविंग दैट पर्टिकुलर ब्रश, देन एज एन ऑल्टरनेटिव व्हाट आई कैन यूज, कौन सा ब्रश मैं यूज कर सकती हूँ एज एन As an ऑल्टरनेटिव? alternative, either you can use this brush. This is a concealer brush, but you can Okay. also draw a line like this, okay, and then blend it upward motion with the help of your beauty blender. As you told me, you don't have a brush, right? Yeah, yeah. Okay, in the upward direction, right? Yeah, in the upward. Yes. Like I don't have a beauty blender right now. Otherwise, मैं आपको बता देती. हाँ But जी. it's okay. हम्म. है ना? कोई नहीं I'll है. do it before you on the camera. अगर मुझे कोई Yeah. प्रॉब्लम होगी, you That will is fine. just guide me. I'll keep an eye. ठीक है? Surely. Secondly, like आपने कहा था 2 या 3 टोन हमारा डार्कर होना चाहिए, the contour, right? हमारे स्किन टोन से, you हाँ, said आपके no? 3 से 4 शेड डार्क हो सकता है. 3 से 4, तो लाइक बेसिकली व्हाट आई वांट टू आस्क कि हमें अलग से काउंटर लेने की जरूरत है, या फिर हमारे आई पैलेट में अगर कोई शेड अवेलेबल है 3 to 4 टोन हमारी स्किन से, तो कैन वी टेक दैट? Yes, of course. मैट. हम्म. Yeah, if you want, if you like powder finish product, ठीक है. और अगर आपके आई शैडो में ऐसा कोई कलर है जो आपके टोन से 2-3 शेड डार्कर हो, तो आप वो भी यूज कर सकते हो. दैट विल बी फाइन ना? Yeah, absolutely. Even I do it when I, don't find my products. Okay, that's good. Okay? ठीक है Okay, जी. perfect. Thank you. All right. ठीक है गाइस, तो हमारे ये वाले स्टेप हो गए हैं. नाउ आई एम क्विकली कमिंग टू माय नोज कॉन्टूर. उसके लिए मैं ये छोटा वाला फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें छोटा एरिया कवर करना है. तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हो, बट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. एक ही बार में आप एक सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे, बट इट्स ओके, आप जैसे एक आइडिया ले सकते हो. सो व्हाट आई डू इज, मैं अपने इस ब्राउ के टिप को गाइडलाइन बनाती हूँ एज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है. उसको मैं टच नहीं करती, सिर्फ एक अंदाजा लेती हूँ, एंड आई जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. इस तरीके से you can just simply draw a straight line and then blend करना है outward motion में, ठीक है. बाहर की तरफ आपको blend करना है. तो इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथ से इस एरिया को कवर करना है, ताकि मतलब इस एरिया को इसलिए हल्के हाथ से करना है ताकि अगर आप कोई मिस्टेक ना कर दो, क्योंकि अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो हमारी नोज थोड़ी टेढ़ी लग सकती है. दिस साइड इज डन. अब इसमें मैं थोड़ा और ब्लेंडिंग करूंगी, ठीक है. जस्ट अ मोमेंट. So I'm using my foundation brush, okay, for this. इसको मैं थोड़ा सा और ब्लेंडिंग करना चाहूंगी. As you can see, मैं बहुत ही एक फेदर टच दे रही हूँ, बहुत ही ज्यादा रफ हाथ नहीं चला रही हूँ. So मैं इतनी ही ब्लेंडिंग में अभी के लिए स्टॉप होंगी, क्योंकि हमें और प्रोडक्ट्स भी प्लेस करने हैं. तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो इवन लगेगा. Now I just look for my
palette, just a moment. Okay, now this is my favorite part, जिसमें मुझे अपने powder products use करने का chance मिल रहा है. So I'm using K Beauty, ठीक है. इसमें I'm using the palette Contour Genius. इसमें 3 शेड है, लाइट, मीडियम, डार्क. मैं लाइट और मीडियम को मिक्स करके अपना शेड बनाती हूँ, क्योंकि मीडियम मेरे लिए थोड़ा सा लाइट हो जाता है. तो मैं ये दोनों शेड इक्वल उसमें प्रोपोर्शन में ले रही हूँ. एंड अगेन मेरी गाइडलाइन सेम रहेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंडिंग हियर. थोड़ा सा पाउट करके अब ये जब करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर ब्लेंड करते हैं, तो उससे वो पैचीनेस को ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मैं क्या प्रेफर करती हूँ, मैं ऑलरेडी ब्लेंडिंग मोशन में ही अपना हाथ चलाती हूँ. इट्स योर पर्सनल चॉइस, अगर आपको वो कंफर्टेबल लगता है कि पहले लाइन ड्रॉ करना और फिर करना, बट दिस इज मोर इजी अगर आप ट्राई करो. Melissa, I have this brush and this blender. तो अभी जो आप पाउडर वाला बता रहे हो, so I should draw a line ना? I should draw a line and then I blend. You don't have any other brush apart from these two? No, I don't have. इससे नहीं हो पाएगा. I mean, ये जो ब्रश है ना हमारा कॉन्टोरिंग ब्रश, ये हमारे क्रीम प्रोडक्ट्स को पिक करने के लिए होते हैं, पाउडर प्रोडक्ट्स को नहीं. ठीक है. Okay. तो you can use cream today, है ना, आज के लिए आप क्रीम कर लो and then you can do powder. But I have powder only, as I mentioned. You only have powder. Do you have any foundation shade which is darker than your skin tone? It's lighter even. It's not darker. Okay. Yeah. So the brush you are saying that is proper contour brush, right? वही Yeah, use this करना one है which हमको. I'm talking about. This is a contouring brush. So इसका आप shape भी देखोगे, it is not flat. It is like, you know, slightly tilted. So it is the same brush ना which you are using with the cream also जब आप उसको blend कर रहे थे. नहीं, cream के लिए I used this flat brush. Okay. ठीक है. उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने blending करी with the help of my foundation brush. ठीक है. Okay. Why don't you purchase brushes? Cutter के brushes भी आप ले सकते हो. You can speak to your coordinator, है ना? These brushes are very easy and very easy to use. Very soft bristles. Moni is right now very confused in कौन से brushes they. She is asking about the brushes from Curl Cutter, but yes, it's okay. Moni, take your time. Whenever you feel, you can order the brushes. Yeah, definitely. Sure. Don't worry. Okay. तो अब मैं अपने इस एरिया को, जॉ लाइन को कॉन्टूर कर रही हूँ. अगेन कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ. ओके गाइस, अब हम सारे चैट बॉक्स के क्वेश्चंस एंड में यू नो आई विल आंसर दोस क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. तो अब हम सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं लास्ट में दूंगी. So this is what I'm doing this side. Now I'll do my forehead. ठीक है. I'm only doing it on my temples. और उसको हेयर लाइन से मैं ब्लेंड करते जा रही हूँ. I will be using my same brush, ठीक है, for my nose contouring on the other side. But मैं पहले clean करूँगी इस brush को, क्योंकि मैंने clean product use करा था.
सो अगेन मैं इन्हीं दो कलर्स पे डिप कर रही हूँ. अगेन यू कैन हैव अ लुक. ये मेरी इमेजिनरी लाइन है, इसको मैं टच नहीं कर रही. आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन. जैसे आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी तो यू जस्ट हैव टू फिल द प्रोडक्ट इस एरिया में. फिर आउटवर्ड मोशन में मैं इसको ब्लेंड भी करे जा रही हूँ. So now you guys can see कि nose कितनी ज़्यादा straight लग रही है. So this is an illusion जो हम create करते हैं. So once all this is done, so जो मेरा cream contour है, ठीक है, जो colors available थे हमारे पास, that has a tinge of orange मेरी skin पर मुझे दिख रहा है, ठीक है. I don't have any other darker tone. जो है वो almost खत्म हो गया है. But this is the placement आपके understanding के, ठीक है. So once this is done, तो मैं करूँगी highlighting. That is the next step. Melisha, just one thing. Yes. जो आपने पाउडर काउंटूर यूज करके नोज की काउंटूरिंग करी है, उसमें कौन सा ब्रश यूज किया है आपने? उसमें मैंने ये वाला ब्रश यूज करा है जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था. हाँ हाँ, इसी से हम नोज भी कर सकते हैं या छोटा ब्रश लेना पड़ेगा हमको? इससे यही ब्रश होता है कॉन्टोरिंग का. बट अगर आपके पास कोई और ब्रश है जो सिमिलर शेप का है तो आप वो भी यूज कर सकते हो. ओके, सो दिस मींस कि इससे हम नोज भी कर सकते हैं, चिन भी कर सकते हैं. दिस कैन बी यूज्ड विद पाउडर एवरीवेयर, है ना? या यू कैन अपार्ट फ्रॉम नोज के अलावा आप अपने फोरहेड पे, जॉ लाइन पे भी और चीक्स पर भी यूज कर सकते हो. सो नोज के लिए थोड़ा बड़ा ब्रश है. हाँ जी. नोज के लिए कौन सा ब्रश यूज करेंगे, मैं वो पूछ रही हूँ. के लिए मैंने ये वाला करा था, देखिए, फ्लैट ब्रश. फ्लैट ब्रश, ठीक है. हाँ ठीक है. ये वाला मैंने नोज के लिए यूज करा था. ये सेम ब्रश है ना दैट वी यूज टू पुट कंसीलर एंड अदर थिंग्स? ये वही ब्रश है? यस. ओके. ये हम आई मेकअप के ग्लिटर्स पे भी यूज करते हैं. That's right. I'm so sorry. Actually, I am literally learning this brush thing. Yesterday, I had a class, so just wanted to, reconcile what I have learned. So okay, that's why I'm asking. Thank you. No problem. आप अपने सारे अपने जो भी इश्यूज हैं, जो भी कंसर्न है, वो क्लियर कर सकते हो. Thank you. Yeah. Okay. So now what I'm doing is I'm using a cream highlighter. ठीक है, I'm using this shade. This one is DF1. अब इसको दोबारा हमें अलग से लेना है ताकि हाइजीन बनी रहे. आप ट्रायल भी कर सकते हो थोड़ा सा. If this shade is fine. So now I will be using this brush again, the concealer brush again. I will be using. तो इसको मिक्स करने के लिए आई एम यूजिंग अ कंसीलर ब्रश. इसको दोबारा हमें याद है मैंने कहा था हमें इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा वार्म करना होता है, एक्टिवेट करना होता है, तभी ये अच्छे से हो पाएगा. So now I will be applying this on my chin first क्योंकि ये एरिया मेरा छोटा है और मैं चाहती हूँ थोड़ा फोकस लगे.
नोज के ब्रिज पे आप लगा सकते हो ये। ये हमारी चीक बोन होती है, ठीक है, इसको आप छू के फील कर सकते हो। यहाँ पे वो बोन खत्म हो जाती है, तो मतलब यहाँ पे गाइडलाइन खत्म, यहीं पे स्टॉप हो जाना है। तो मैं थोड़ा सा जहां मैंने कॉन्टोरिंग करा है उसके नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि वो थोड़ी और प्रोमिनेंट लगे, थोड़ी और शार्प लगे। सेंटर ऑफ द फोरहेड में भी मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाऊंगी, so that it can look bit focused. So once this is done, हम आ जाएंगे blending वाले part में। Again you have to clean your brush. So guys, क्लीनिंग ब्रश का मैं इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट पर भी मेकअप करोगे तो दे वांट हाइजीन फर्स्ट। वैसे भी कोविड चल रहा है, और नहीं भी चल रहा है, कोविड हो या ना हो, फिर भी अ मेकअप आर्टिस्ट शुड नो कि कैसे हमें हाइजीन मेंटेन करनी है। अगर हमारे ब्रशेस डर्टी हैं उसके वजह से कोई भी क्लाइंट के फेस पे कोई एक्ने आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो आपको ही ब्लेम करते हैं ऑटोमेटिकली। सो मैं हल्के हाथों से ये ब्लेंड कर रही हूँ। सेम फोरहेड, नाउ थोड़ा सा डाउनवर्ड मोशन में मैं कॉन्टोर के नीचे जो मैंने जरा सा हाईलाइट लगाया है वहां पे भी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। नाउ आवर चीक बोन, so once this is done, I'll come back to my powder products. I will be using highlighter from this palette which is by Makeup Revolution. इसमें मैं ये थर्ड वाला शेड यूज करने का सोच रही हूँ। I will be taking this eyeshadow blending brush to put my highlighting, ठीक है, क्योंकि ये छोटा ब्रश है, इसका मल्टी यूज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर ये आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है तो सिर्फ उसी का ही यूसेज होगा। सो अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख सकते हो। पहले मैं अपने वही चीक, सॉरी आई फॉरगॉट किया मैंने पाउडर लगाया, यहाँ पे आई विल बी अप्लाइंग नोज के ब्रिज में। मैं इसी के ऊपर थोड़ी सी एक टॉपिंग दे देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हाउ इट लुक्स। क्यूपिड वो तो अगर हम क्यूपिड बो में हाइलाइटिंग करते हैं तो हमारा लिप थोड़ा फुलर लगता है, और जो हमने लिपस्टिक लगा रखी है वो इस एरिया से बहुत ज्यादा इनहैंस करता है, डिफाइंड लिप्स लगते हैं।
और हम हाईलाइटिंग अपने ब्राउ बोन में भी कर सकते हैं गाइस। तो ये हमारी ब्राउ बोन होती है, जो हम थोड़ा सा अगर आप टच भी करोगे तो आपको फील होगा यहाँ पे एक बोन है, इसको हम ब्राउ बोन कहते हैं। सो वंस दिस इज डन, तो मैं अपने हाईलाइटिंग करके चीक वाले एरिया में एक बार रुक गई थी। मैं सोच रही हूँ पहले ब्लशर लगा लूं। I'm not able to find my blusher brush, so मैं क्या करूंगी, this is my powder brush, ठीक है, इसी को मैं एज अ ब्लशर ब्रश यूज के लिए यूज करूँ। So I'm using this by My Glam blusher. It is strawberry blush K Play. तो इसको मैं, that's the shade. तो इसको मैं अप्लाई करने के लिए there is another छोटा सा गाइडलाइन, ठीक है। What you can do is you can smile a bit, ठीक है। So when you smile, you get these, apples. So हमारे स्किन फेस के this area होता है जिसको हम apples of our cheek कहते हैं। वहाँ पे आप ब्लशर लगा सकते हो। So when you smile, you get this guideline. But अगर आप smile नहीं कर रहे हो, especially on a round face, तो face में कोई इतने bones इतने prominent नहीं होते, तो flat सा लगता है। Now, let me find a nice lipstick shade. तो लिपस्टिक के लिए मैं ये पिंक शेड यूज कर रही हूँ बाय हुडा ब्यूटी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एज अ क्रीम ब्लशर यूज कर रही हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने एज अ डॉट वे में लगाया। दिस इज वेरी पिगमेंटेड गाइस। तो इसको मैं अपने स्किन पर बफ कर रही हूँ। So now do you see, अगर आपके पास अगर कोई क्रीम ब्लशर नहीं है तो आप अपना लिपस्टिक का भी यूज कर सकते हो। दिस इज अ हैक। और इसके बाद मैं क्या करूंगी, अपने पाउडर से अपने इस एरिया को मैं सेट कर लूंगी, क्योंकि आई हैव यूज्ड ऑल पाउडर प्रोडक्ट्स। So I'm using this powder by K Beauty. बिल्कुल ही हल्के हाथों से। So once this is done, let me just do some finishing on it. So किस किस का ये पार्ट तक हो चुका है मेकअप? जब तक आप लोग अपना मेकअप फिनिश कर रहे हो, मैं थोड़ा सा इसमें जहां जहां मुझे लग रहा है और ब्लेंडिंग की नीड है वहां पे मैं कर देती हूँ।
तो मैं अपने हाइलाइटर को थोड़ा सा और चीक एरिया में मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं उसको थोड़ा सा और फिनिशिंग दे रही हूँ। So Tushar, I'm almost done. Okay, guys. Let me see. तो गाइस क्या क्या आप आई होप आपको सबको एक बेसिक नॉलेज मिल गई है कि हमारी कॉन्टूरिंग एंड हाइलाइटिंग की प्लेसमेंट कहाँ होती है और उसका क्या रोल होता है कि अगर हम कॉन्टूर कर रहे हैं तो हमें अपना फेस थोड़ा पतला लगेगा, ठीक है, हाईलाइट कर रहे हैं तो कुछ एरिया को हमें ज्यादा फोकस दिखाने के लिए करना है। तो आई थिंक इन दोनों चीज की अंडरस्टैंडिंग आपको आई होप सो क्लियर हो गई है इस क्लास के बाद। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अभी पूछ सकते हो। तुषार, शैल वी स्टार्ट फ्रॉम जिन्होंने भी क्वेश्चंस रेज करी हैं चैट बॉक्स में? I think you have answered most of the question. एक क्वेश्चन परमिंदर का है लास्ट में। अगर किसी के फेस पर पहले से ही नोज काफी ज्यादा विजिबल हो तो कॉन्टूर एंड हाईलाइट कैसे करें? नोज ज्यादा विजिबल हो मतलब नोज बड़ी हो, आपका ये मतलब है? परमिंदर, आपका क्वेश्चन में थोड़ी क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए। यस। तो अगर नोज बड़ी है तो हमें उसको कम दिखाने के लिए कॉन्टूर करना पड़ेगा, ठीक है। जहां जहां भी डिपेंड करता है कि चौड़ी नोज है कि बहुत लंबी नोज है तो उसका एक अलग होता है। अगर बहुत ज्यादा चौड़ी है तो हमें इन एरियाज को भी कॉन्टूर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइन जो मैंने आपको गाइडलाइन बताई है सेम फॉलो होगा, बस थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्टूरिंग होगा। ये आप जब किसी के ऊपर करोगे ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आप एक साइड करके देखना, इन एरियाज को भी, नॉस्ट्रल्स जिसको हम कहते हैं, इन एरियाज को भी थोड़ा सा कॉन्टूर करना, एक साइड मत करना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना डेप्थ दे रहा है वो एक तरफ को। Any more questions, guys? Anything you want to ask? Tushar, I have some questions. Yeah, please go ahead. Yeah, thank you. Melissa, this is a very stupid question also. I just wanted to know, like, we are firstly covering our face with contour and highlighting. Then if we are putting the blusher over it, तो ऐसा नहीं होगा that हमारा contouring जो हमने करी है वो छुप जाएगा, वो अच्छे से दिखेगा नहीं? अच्छा, पहले तो मैं ये बोलूंगी दिस इज नॉट अ स्टूपिड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल ही ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है। और हमारा कॉन्टूर, ब्लशर और हाइलाइटिंग का ना ये एरिया इन्हीं के लिए ही बना है, तो वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो कॉन्टूर के ऊपर हमें हाइलाइटिंग प्लेसमेंट करनी है, सॉरी, कॉन्टूर के ऊपर हमें ब्लशर का प्लेसमेंट करना है, फिर ही हाईलाइट आता है, ठीक है। और वो बिल्कुल भी हाइड नहीं होता है। सो इफ यू सी दिस पार्ट, यहाँ पे ये जो एक आ रहा है ना, जब हम ब्लशर लगा देते हैं वो मर्ज हो जाती है, तो वो लाइन को मर्ज करने के लिए वी गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ओके, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, मुझे ये जानना था, जैसे आपने मुझे जब आपने एक्सप्लेन किया था तो चिन वाला तो आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि कैसे करना है, लाइक वी आर क्रिएटिंग अ वी below the chin.
बट चीक से हमको कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ तक लेके जाएंगे, एक बार आप फिर से बता दोगे प्लीज? तो हमारी गाइडलाइन बहुत ही इजी होती है. आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, ओके. एंड आई एंड, जो हमारे ब्राउज का एंड होता है, ठीक है, आउटर कॉर्नर होता है, वहां पे हमें रुक जाना है, ठीक है. अब उसका रीजन क्या है, अगर हम यहीं पे रुक जाएंगे तो ब्लेंड करते करते ऑटोमेटिकली थोड़ा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है. हाँ. तो हमें उससे आगे जाना भी नहीं है, तो हमारी फेस बहुत ज्यादा जैसे ओल्ड लोगों की होती है थोड़ी, I'm not getting that word, saggy skin I guess. Okay. थोड़ी होती है ना, तो just stop here, blend till here. अगर हम ज्यादा आगे आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ तक कॉन्टूर आ जाएगा, ठीक है. तो यही हमारा एक छोटा सा गाइडलाइन है जिसको आप हर फेशियल शेप में फॉलो कर सकते हो. ओके, एंड दिस इज फॉर बोथ क्रीम एंड पाउडर ना, दोनों के लिए ऐसे ही करेंगे? बोथ क्रीम एंड पाउडर, यस एब्सोल्युटली. ठीक है. एंड मलिका, अगर इफ आई एम डूइंग एनी ब्राइडल मेकअप, सो उसके लिए क्रीम contouring and highlighting will be better if someone is having normal skin, or we can go for the powder one. Which one will be, much better? If someone has a normal skin, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, क्रीम भी पाउडर भी. बट क्रीम से क्या होगा, थोड़ा ज्यादा वो हमारे स्किन से ना मर्ज हो जाता है. जो पाउडर होता है वो हमारे ऊपर ही लगता है स्किन पर, ठीक है. अगर आप डिफरेंस देख सकते हो, ये बिल्कुल स्किन से एक तरफ मर्ज हो जाता है और दूसरा वाला एक टेक्सचर बना देता है ऊपर ना स्किन पर. बट यस, अगर किसी की ऑयली है तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें पाउडर ही यूज करना होता है. पर नॉर्मल पे आप दोनों यूज कर सकते हो, इट्स योर पर्सनल चॉइस. ओके, बोथ विल बी लॉन्ग लास्टिंग, है ना? यस, बट अगर आप ब्राइडल है तो क्रीम भी कर सकते हो, इट विल ब्लेंड रियली वेल. Okay, and one more thing, like you have shared the PPT, I have taken the screenshots and I am not able to do the practice right now. So just wanted to know, like, what face shape do I have so that I can just follow the procedure. जो आपने वो फोटो दिखाई थी ना, I can follow that. Yeah. Alright, तो तुषार एक बार इनको आप स्पॉटलाइट में लाइए. Definitely. Moni, can you please turn on your camera? Yeah, sure. ठीक है, पहले मैं चाहती हूँ आप अपने स्किन को अंडरस्टैंड करके मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि आपकी फेशियल शेप क्या है? एक होता है ना थोड़ा सा अंदाजा लगा के. It's not round, I'm sure. It could be oval or it could be angular, maybe. It is, I think it is a mixture of two. It is slightly towards oval, ठीक है, slightly, but oval का ना ये एरिया थोड़ा और ज्यादा पॉइंटी होता है. So it is between oval and square. Okay, so जब मैं practice करूँगी, then I'll be doing which one? Contouring. So it's between. तो आप क्या करोगे, जहां जहां पे आपको लग रहा है, जैसे कि आपका फोरहेड एरिया जो टेम्पल्स कहते हैं जिससे, ठीक है, ये एरिया आपका थोड़ा सा ब्रॉड है, आप यहाँ पे कॉन्टूर कर सकते हो, ठीक है. चीक पे सेम गाइडलाइन जो मैंने बताई थी. स्लाइटली आप अपना ये जॉ लाइन पर कर सकते हो, तो वो ज्यादा और शार्प लगेगा. जब आप ऐसे करोगे ना, ऐसे करो एक बार, तो दिस शुड बी योर एक्चुअल फेशियल शेप, है ना. वो तो हम इफ यू हैव एनी डबल चेन या कुछ है, दैट इज अ डिफरेंट केस, ठीक है. तो उसको हमें वो खत्म करने के लिए वी डू दिस कॉन्टोरिंग. तो आप यहाँ पे भी स्लाइटली लगा सकते हो ताकि वो बैलेंस शेप आ जाए. ठीक है, ठीक है. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. या, एनी मोर क्वेश्चन डू वी हैव? Anything else, guys? Anything you want to ask? और किसी ने अगर ये कॉन्टोर करा है, so please let me know so that I can put you on spotlight one by one. वंदना, आपने किया है ट्राई? Yeah, मैंने किया है. As always, nice. Hi Vandana, how are you? Hello, I'm well. Great. So ब्लशर और हाइलाइटिंग तो मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है. थोड़ा इधर होइए, थोड़ा सा साइड फेस दिखाइए, इस साइड, ऐसे इस तरीके से. आई थिंक इनका वीडियो स्टक हो रहा है. हाँ, आपका कॉन्टूरिंग का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो रखा है. कॉन्टूरिंग, ब्लशर, हाइलाइटिंग का तीनों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो रखा है. दूसरी साइड दिखाइए.
ये साइड तो मैंने देख लिया है, दूसरी साइड दिखाइए एक बार। हाँ, इसका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लाइट की वजह से यहाँ थोड़ा डार्क लग रहा है या थोड़ी ब्लेंडिंग नहीं हुई है। अच्छा मैं लाइट में आती हूँ, लाइट नेचुरल में लाइट। आइए थोड़ा, हाँ नेचुरल लाइट में आइए। आई मीन नेचुरल लाइट। या इट लुक्स गुड, इट लुक्स गुड, बट थोड़ा सा मैं कहूंगी थोड़ा सा नीचे आ गया है कॉन्टूर। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ गया है, यहाँ तक भी स्टॉप होते तो परफेक्ट लगता, बट इट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, द प्लेसमेंट इज परफेक्ट। ओके ओके ओके, perfect, thank you. Thank you, Anna. Okay, anyone else, guys? Or we should wind up now? I think we are done here. Yes. So perfect. So thank you so much, Melissa, for this amazing session. I hope सबको contouring and highlighting का basic concept समझ में आया होगा, and you have explained it in a very amazing way. So thank you so much for this session. Thank you so much, guys. Bye bye. Bye. Okay, guys, how was it? कैसा लगा आप सभी को ये session? Any feedback, any suggestions you guys are most welcome. Great. Perfect. That's really great, guys. So thank you so much, guys, for joining us today. It was great having you here. Don't forget to sign up on www.cultcutter.com. Follow us on Instagram at cultcutter. Follow Melissa Young on Instagram at @MUA_Melissa Young. And you'll find some amazing content there. If you like our sessions, please post a review on Google. It would really mean a lot to us. Thank you so much, guys. We will see you in the next session. Till then, bye and take care.